Om Gurve Namah. All right. So I'll share my screen straight away, and it's going to be a little conventional lecture today, the first lecture on Navavastu, right? So this is the term that I have brought in. This is called Navavastu. Nav means 9 grahas are to be involved in every Vastu activity. But before I start Mahavastu, I would want to tell you few backgrounds of Vastu Shastra. See, like other Shastras, Vastu is also a Shastra. Okay, if somebody says that Vastu is a branch of Jyotish, right? Like we have Gemini Jyotish or Krishnamurti Padati, KP, you know, is Vastu come out of Jyotish? The answer is no. Okay, so Vastu has technically, it's not a Jyotish lineage, to be very, very, you know, precise and clear with you people. But on the same time, it would need lot of inputs from Jyotish. Okay, for an example, I'll give you example is suppose you know you go to a heart specialist and you have some problem in your heart. Okay, now he says that okay, we'll get the you know we'll get some operation done, we'll have to do a bypass or something like that. But then before he go ahead and perform the surgery, he would need inputs from a pathologist, that what is the status of your blood, status of the other vitals in the body, right? How much is the electrolytes, how much is the sodium, right? How much is the hemoglobin, right? How much is TLC, DLC? He would need all these specifications. He would need inputs, right? On the same time, he would also need some inputs from probably a radiologist. He would need some X-rays and CT scans, right, to understand what is the position before he opens up. Okay, that's the another thing he would need. On the same time, he would need inputs from that individual as well. What are you feeling? How are you feeling? What sort of problems? What is your history? So then he performs a surgery, right? So what happens in uh, Vastu Shastra is it's an individual vertical, it's a Shastra, written, you know, many, many years ago, right? And there were many, uh, Vastu Shastra or Granths that were available. And it has been clearly mentioned in the Rig Veda. In the Rig Veda, if you open and try to study Rig Veda, you will see lot of information on Vastu, that this Vastu Shastra was written. There was various uh, Vastus, Padatis were written. Like for an example, there's a very different Padati for Graha Vastu, okay, which is for home. There was a very different, Padati for Nagar Vastu. You understand a Nagar Vastu. Nagar is a entire city. So cities, if you see the Puratan cities, they are also, as per Vastu. So there's Graha Vastu, there's something called Nagar Vastu, right? And then there was Durga Vastu, Pur Vastu. So many, Vastus were given, like Vastu of a country, Vastu of a state, okay, Vastu of a city, and then Vastu of a home. Okay, I will give you an example, my observation. Suppose you are living in a township, okay?
Suppose you're like, I live in a township here in Ludhiana. It's a very organized, well planned township. Okay. And in this township, you see, suppose there are 500 flats. Okay. Why it happens that in a particular building or in a particular side of that township, we have either villas or flats, there is more prosperity on the one side and there is no prosperity on the other side. You would see there are some buildings where people don't have good cars. They have a lot of motorbikes and bikes and a lot of people who are into service class and lower service class, people working as executives somewhere, right? A lot of people are living, bachelors are living, hostel students are living, PGs are there in some building, and in some buildings there is tons and tons of prosperity, right? You will see within the township itself, right? Forget about a city or a state or a country, right? Just go within the township. There will be some buildings who would be very successful in the same township. There will be some buildings who may not be very successful and they are untidy. They are not well maintained somehow. I mean, same township, same builder, the people have sold it in the same pricing and everything, but still there is something wrong, right? Even that also happens. Again, what is happening here is there are two things that are happening. One, because you are suffering in life because of your past life karmas. Okay. The second suffering is coming to you because of the place in which you are living. So these are two separate things, right? For an example, if you get a disease called cancer or any disease like skin problem, okay, you have psoriasis, skin psoriasis, right? Or you have TB, or you have cyst in your ovaries, or you have PCOD, PCOS, or there are cancerous things in your reproductive organs. Do you think that these diseases come out of infection? The answer is no. No. I was giving a consultation to someone last week. He was a surgeon himself, very fit guy, used to work out 2 hours every day, absolutely highest level of fitness, very, very diet conscious, and a great surgeon. And he was diagnosed with the 4th stage lung cancer. And I asked him, sir, I mean, do you smoke or do you drink? Or he said, I've never smoked in my life. I've always went for a run, like 5 to 10 kilometers run every day. And I don't eat anything nonsense. I do pranayam. And he just passed away within 2 years after he was diagnosed. 2 years, I don't know how he stressed himself. Ideally, he thought that he'll live for 4, 5, 6 months only. But then he was a doctor. He had that strong will to urge to live, but he could not survive more than 2 years. He just passed away. Now, what do you think? Is this a disease, which is a lifestyle disease? This disease has come from the prarabdha. Okay. The past life karmic settlement. Right? कुछ रोग ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रारब्ध के रोग हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके प्रारब्ध के कार्मिक सेटलमेंट के लिए वो होता है। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो प्रारब्ध की वजह से है, लेट मी टेल यू, आपका वास्तु उसमें कुछ नहीं कर सकता।
आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन वेरी क्लियर and very upfront. No vastu specialist will tell you that. ये शास्त्र में साफ तरीके से लिखा है कि प्रारब्ध का कोई भी भुगतान अगर आपके जीवन में हो रहा है, चाहे आप वास्तु फुली वास्तु घर में रह रहे हैं जो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया गया, आपकी कुंडलियों से इनपुट लेके बनाया गया, वास्तु कैंसर जैसी बीमारी या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी, कोई अपाहिज हो गया या घर पर किसी की असमिक मृत्यु हो रही है, तो आप वास्तु से उसको ठीक कर लोगे? आंसर इज नो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में छोटा छोटा बार बार कोई बीमार पड़ता है, किसी की बॉडी में पेन रहती है, किसी को बार बार बुखार आ जाता है, स्टमक इश्यूज रहते हैं, आपका छोटी मोटी बीमारियों पे खर्चे होते रहते हैं, कुछ टूट गया, गाड़ी खराब हो गई, फिर वो ठीक नहीं हो रही है, राइट, छोटा छोटा खर्चा, पैसा रुकता ही नहीं है घर पे, ये सारी प्रॉब्लम्स वास्तु ठीक कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रारब्ध के मूवेबल या ड्यूल कर्म है, ये फिक्स्ड कर्मास में से नहीं आता है। जितने भी कर्मा थ्योरी के अंदर मैंने आपको 3 प्रकार के कर्म बताए थे, 2, 5, 8, 11 राशियों वाले फिक्स्ड कर्म, राइट, 1, 4, 7, 10 वाले मूवेबल कर्म, 3, 6, 9, 12 वाले ड्यूल कर्म। जो मूवेबल और ड्यूल कर्म है आपके, 100% वास्तु आपको सपोर्ट कर सकता है उसमें, परंतु फिक्स्ड कर्मों में वास्तु सपोर्ट नहीं कर सकता है। वास्तु विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट, ये याद रखिएगा आप। और इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं, नवनीत सर हमारा घर कंप्लीट वास्तु के साथ बना हुआ है और हमें इतनी सफरिंग मिल रही है जीवन के अंदर। आप समझिए इस बात को। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सफरिंग प्रारब्ध से आ रही है कि वास्तु डिफेक्ट से आ रही है। ओके, डोंट मिक्स एंड मैच। इफ यू हैव अ ऑर्थो प्रॉब्लम, यू डोंट गो टू अ जर्नल प्रैक्टिशनर। आप जर्नल मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले के पास अपनी हड्डियों का इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हो। एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग हैज अ रूट कॉज, और आपको उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है। रूट कॉज कुड बी वास्तु, कुड बी योर प्रारब्ध, कुड बी योर लाइफस्टाइल, कुड बी योर फ्री विल। वो प्रॉब्लम आपकी फ्री विल से भी हो सकती है, आपके बैड वास्तु से भी हो सकती है, और हमें एक एक करके उसको ठीक करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, इसको आप अपने आप को ठीक करना ही कह सकते हैं। आपके अपने कर्म को स्पिरिचुअल बनाना है, फिर आपने अपने वास्तु को ठीक करना है। अपनी तरफ से कोशिश जारी रहेगी, और वास्तु के बाद जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, ये नव वास्तु है। जो पॉजिटिव चेंजेस आ जाती हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वो वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, इसका मतलब। और अगर देर आर नो चेंजेस आफ्टर डूइंग योर वास्तु, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम योर चार्ट्स, then there are no changes, no improvement. That means the problems that you have are fixed and they are coming from your prarabdha. सिंपल। इसके लिए आपको वास्तु को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने वास्तु करवाया और उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिले,
You are wrong. For an example, there is a house, right? If I go in that house and live in that house, I am going to live a good life, a great life. But the moment somebody else come and lives in that house, he is having a bad life. Same house. Question is why? Isn't that house Vastu made? Isn't that house having good energies? What is wrong? What is the problem? Problem is that for some people, north could be good, and for some people, north would be bad. For some people, south could be good. For some people, southeast is bad. For an example, I'm living in south facing home from past 10 years, and my life has definitely improved in the south facing home. But when I was living in the north facing home, my life was not that stable. Now, if somebody lives in a south facing home, he could be in trouble. He would have better life in the north facing. And then from where this tip is coming? See, what is happening is a lot of people on YouTube and Vastu specialists are telling people to live in the north or northeast facing home. And just to create their viewership and add subscribers, they are also praising south facing homes. This is not Vastu. Okay, this is not Vastu or Mahavastu or whatever you call it. No. You have to identify that what direction will suit you only from a chart, from a kundali. That is the most important thing. कि आपके लिए कौन सी जगह है जो अच्छी है, और उसको पता लगाने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको आपकी कुंडली में ये पता होना चाहिए बहुत बेसिक से कि आपकी कुंडली का मोमेंटम कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स के साथ है. इज इट विद सन मून मार्स? आप जानते हैं कुंडलियां दो प्रकार की होती हैं. एक कुंडलियां जहां पर सन मून मार्स जुपिटर योग कारक हैं, और दूसरी कुंडलियां जहां पर शुक्र शनि राहु केतु योग कारक हो जाते हैं. मैक्सिमम लगन भी ऐसे ही डिवाइडेड है. वहां से हमें पता लग जाएगा कि आपको कैसे घर में रहना चाहिए, जो मैं आने वाले वक्त में आपको सिखाऊंगा. उसके बाद अष्टक वर्गा का विश्लेषण होता है. बहुत इजी विश्लेषण है. और उसके बाद आप किस डायरेक्शन में रहते हैं वो हम निकाल सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है रहने के लिए. आपके ऑफिस के लिए जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम योर रेजिडेंस. और अगर आप किसी भवन या मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन भी बहुत डिफरेंट हो सकती है. Because one formula doesn't apply everywhere. A house can be fantastic for someone and then it can be worst for someone else. It is not that it was not under Vastu. It is because those directions are not suiting that person, which lot of Vastu specialists are not considering. They are going with the general flow. They are going with the जनरल फ्लो कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन, घर के बड़ों का कमरा साउथ वेस्ट में, बच्चों का कमरा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम, नॉर्थ की तरफ नीला, साउथ की तरफ रेड. बेसिक ऑब्जर्वेशंस, very basic observations.
दे गो टू अ हाउस, जैसे ओ आपका तो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, ये गलत हो गया, यहाँ पे स्टडी रूम होना चाहिए था, ये बच्चों का कमरा बना दो, आप नॉर्थ वेस्ट ले लो, साउथ वेस्ट ले लो, समथिंग लाइक दैट. ऑलवेज kitchen should always be in the southeast. Fine, I agree. But then on the same time, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें कुंडलियों की इनपुट चाहिए. और अगर किसी को ज्योतिष नहीं आता है इस कक्षा के अंदर, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी इनपुट्स लेनी है. राइट? अगर एक हार्ट स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी की इनपुट लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पैथोलॉजी के टेस्ट करने भी आते हो. उसको सिर्फ रीड करना है उसमें से कि ये पैरामीटर्स हैं. आप मेरी डीप बात को समझिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट यू नो ज्योतिष इन डिटेल टू अंडरस्टैंड वास्तु. यू जस्ट हैव टू टेक इनपुट्स, और इनपुट्स लेना तो मैं सिखा ही सकता हूं आपको कि भैया ये चार चीजें देख लेना, और वो सॉफ्टवेयर्स बताते हैं आज की डेट में. All the softwares have this capability to give you straight inputs. You just have to click on the options and you will get the inputs. Very simple. Now, going ahead, our Sharira is made of 5 elements. The Sharira, the body. Okay. Our Sharira is made of 5 elements. To begin with, water, then air, then Agni, which is heat or Agni. Okay. Water, Jala, right? Then this is what? Vayu, Agni, then what is the next one? Tell me. Earth Earth, and ether, which is Dharti Tattva, and then Akash, Akash, ether. you can say sky, Akash. ओके. और इसकी जो हायरार्की है वास्तु में, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से चलती है. सबसे पहले वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करता है, एयर अग्नि को क्रिएट करती है, अग्नि अर्थ को क्रिएट करता है, और अर्थ जो है वो स्काई को क्रिएट करता है. इसी तरह से हायरार्की एग्जैक्टली सेम हायरार्की है, याद रखिएगा इस ऑर्डर को. ये ऑर्डर जीवन में बहुत काम आता है. हम अभी वास्तु पे नहीं जा रहे हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी क्रिएट कर रहे हैं. ओके. अब अगर वाटर एलिमेंट शरीर में कम हो जाए, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? डिहाइड्रेशन होगी, मृत्यु हो सकती है. अगर एयर कम हो जाए, ऑक्सीजन, ये तो कोरोना ने, कोविड ने बहुत सिखा दिया. ऑक्सीजन लेवल चेक करो, 97 98 है. जैसे ही 95 से कम आया भागो, 90 से कम आया और जल्दी भागो, 80 से कम हो गया, गए 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 गए. बता दिया कोविड ने हमें इंपॉर्टेंस ऑफ वायु. और वायु की इंपॉर्टेंस के साथ साथ, क्योंकि अगर वायु कम होती है तो शरीर में बुखार आता है ना, कोविड से बुखार आ रहा था शरीर के अंदर. और अगर अग्नि ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो जाए, टेम्परेचर गिर जाए शरीर का,
तो भी मृत्यु की तरफ ले जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी मृत्यु की तरफ ले जाता है। और ये वाटर, एयर, अग्नि जो है, ये तीनों चीजें किस में है? आपके शरीर में, जो कि टेक्निकली आपकी धरती है। आपका लीवर कहाँ पे लगा हुआ है? आपकी आईज कहाँ पर लगी है? नोज कहाँ पर लगा है? आपकी धरती। आपकी धरती मतलब आपका शरीर। और जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप आकाश को इंपॉर्टेंस देते हो। आकाश इसीलिए आकाश है क्योंकि धरती है। अगर धरती ही ना हो तो उस आकाश को आकाश कौन कहेगा? अगर आप स्टूडेंट्स ही मेरे जीवन में ना हो तो मुझे गुरु कौन कहेगा? Who will tell me every day that I am a guru or a teacher and make me things like guru or a teacher? I mean, make me do things like a guru or a teacher is you people. Very, very simple. आपको क्या लगता है ये 5 के 5 एलिमेंट हर एक देवता के पास भी होते हैं? Yes or no? The answer is Yes. 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 Okay. हर देवता के पास होते हैं 5 के 5 एलिमेंट। और ये 5 के 5 एलिमेंट वास्तु देवता या वास्तु पुरुष के पास भी होंगे। अगर ये आपके पास हैं और हर एक देवता के पास है तो ये वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के पास भी होंगे। अगर आपको अच्छा जीवन बताने के लिए अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस्ड करके रखना होता है तो क्या हमें एक अच्छे घर के लिए वास्तु देवता के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं करना होगा? इसी को वास्तु कहते हैं। बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ द वास्तु देवता: वाटर, एयर, अर्थ एंड आकाश, obviously the agni as well. You have to balance the 5 elements of a vastu devata who resides in your home, जो आपके घर पे रिजाइड करते हैं। वो कैसे रिजाइड करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके पीछे स्टोरीज है। क्लासिक्स में काफी डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहां से हमें थोड़ा बहुत डेटा मिलता है हम वहां से उस डेटा को, जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं उसमें बहुत सा उल्लेख दिया गया है, वहां से हम ये डेटा उठाते हैं। उन्होंने जो डिफरेंट क्लासिक्स में जो डेटा आया है वो ये बताते हैं कि भगवान शंकर ने जब अंधकासुर का वध किया, अंधकासुर एक राक्षस थे, जब देव और दानवों के बीच में विवाद चल रहा था सागर मंथन के समय में, उस समय भगवान शंकर ने अंधकासुर एक राक्षस था उसका वध किया था। और वो युद्ध करते हुए शिवा वॉज स्वेटिंग। अब आप तो पता ही है कि शिवा की एक एक एनर्जी किस लेवल पे है। अगर उनका एक चक्षु में से एक बूंद गिरती है
आंख में से एक भी बूंद अगर गिर जाती है आंसू की तो वहां पर रुद्राक्ष पैदा हो जाते हैं। और कितने मुखी रुद्राक्ष है, एक आंसू भोलेनाथ की रुद्राक्ष पैदा करती है। धरती पर गिरे तो रुद्राक्ष पैदा हो गए। जहां उनका पसीना गिरा, पसीना वॉज टर्बुलेंट एनर्जी, नमकीन होता है पसीना, कभी टेस्ट किया हो आपने, स्पोर्ट्स पर्सन है, भाग भाग के मुंह में थोड़ा सा पसीना आ जाए तो इट्स लाइक सॉल्टेड, वेरी वेरी सॉल्टेड। और जैसे ही वो पसीना गिरा तो वहां पर एक बहुत विकराल, बहुत ही बड़ा, with a very big face, a person was created. And जिस समय ये पसीना गिरा उस समय Shiva was so angry and Shiva was hungry to kill that particular दानव। वही ट्रेट्स उस पर्टिकुलर पुरुष में आ गई। ही वॉज हंग्री। और भोलेनाथ ने देखा कि ये क्या है, मतलब ये क्या क्रिएट हो गया है। और साथ ही वो भोलेनाथ से क्रिएटेड था तो वो मेडिटेशन में बैठ गया और मेडिटेशन में बैठकर उसने भोलेनाथ को अपने अंश को बुला लिया। आपको क्या लगता है जीवन में, आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, आप माँ काली की भक्ति करते हैं, तो क्या आप भगवान को चुनते हैं अपने लिए? The answer is कि नो, भगवान आपको चुनते हैं। अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो कृष्णा इज चूजिंग यू बिकॉज ही नोज कि यू विल मेक हिम प्राउड one day, maybe in this janma or maybe in some other janma. अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो आपने भोलेनाथ को नहीं चुना है, भोलेनाथ ने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए। याद रखिएगा ये बात, ये बहुत डीप बात है। अगर आप राम जी की भक्ति करते हैं तो आपने राम जी को नहीं चुना है, राम जी ने आपको चुना है। Like I have selected people for RVA. People have not selected me for RVA. Simple. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा नहीं होता है जो हम सोचते हैं कि हमने बाय चॉइस कृष्ण भगवान की भक्ति की है। नहीं, कृष्ण भगवान ने आपको चूज किया सुबह शाम हरे कृष्णा कहने के लिए। कृष्ण भगवान ने चूज किया आप सबको राम राम कहने के लिए, जय अम्बे कहने के लिए, भोले बाबा का नाम लेते हैं, जय भोले, बम बम भोले। वो शिवा चूजेस। बिकॉज भोलेनाथ को सब पता था कि क्या होना उसके बाद। उनको पता था कि क्रिएशन की ड्यूटी उनकी लगेगी, डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी उनकी लगेगी, और डिस्ट्रक्शन के लिए उन्हें 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसको 5 एलिमेंट्स को धीरे धीरे भोलेनाथ को बंद करना होगा जीवन में, तो ही इंसान यहां से जाएगा। भोलेनाथ को सब मालूम था। ऐसे ही नहीं उन्होंने पसीना गिराया, ये नहीं कि पसीना धरती पे ही गिरा, कहीं और जाके नहीं गिरना था। ये सारी की सारी एक लीला थी उनकी, कंप्लीट लीला। तो वहां से जो वास्तु पुरुष निकला तो उसने कहा कि मुझे तीनों चीजें को खाना है, आई एम हंग्री। आकाश, पाताल और धरती को मुझे भूख लगी, मेरे को तीनों खाने हैं। बिकॉज वो शिवजी का पसीना था, वो कुछ भी खा सकते हैं, निगल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और आपको पता ही है भोलेनाथ से चाहे दानव मांग ले चाहे देव मांग ले, उनका जवाब तो एक ही है, तथास्तु। ले ले भाई।
अब वो रिजल्ट बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। एक बार तो वो कह देते हैं बेटा चक दे फटे, ले ले चक उठा ले, ग्रांटेड। वो भोलेनाथ की, भोले है ना, वो भोले हैं। अब उनको जब ग्रांट कर दिया तो जितने देवता हैं, ये ब्रह्मा जी जिन्होंने धरती क्रिएट की थी, ये सब को इधर उधर भागने लग गए। अब ये क्या कांड कर दिया भोलेनाथ ने। पहले वो बनाया, उसको तथास्तु बोल दिया, अब तो वो धरती आकाश हम सबको खाने आ रहा है वो इंसान। फिर ये सब भोलेनाथ के पास भागे, भोलेनाथ को रियलाइज हुआ अच्छा 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 गलती हो गई यार, आई एम सॉरी। तो कह रहे भोलेनाथ सॉरी तो ठीक है, बचाओ हमें, सॉरी से क्या होगा। वो कहते ऐसा है, आप सब लोग चलो मैं आ रहा हूं। तो रोकते हैं उसको, पहुंचो वहां पे। अब जो होना था हो गया, उसके पीछे भी लीला है। अब वो जाकर वास्तु पुरुष देखा, वो तो बस तैयारी करके मुंह खोले खड़ा है कि मैं खा लेता हूं सबको। तो भोलेनाथ ने सबसे पहले उसका सिर पकड़ लिया, है तो अपना ही अंश है उनका। सिर पकड़ के थोड़ा सा उसको जमीन पे लगा दिया, बिठा दिया। बोले बेटा ऐसा है, तेरे को हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा भी, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, अब ये सारे बेचारे मेरे पास आ गए। अब वो भोलेनाथ को कैसे मना करता। कहते हाँ जी, आपने वरदान दिया, अब आप जो कहोगे मैं तैयार हूं करने के लिए। कि बेटा तैयार नहीं है, पूरी इज्जत मिलेगी तुझे। इस धरती के 5 तत्वों का मैं तुझे ब्लेस करता हूं, इस धरती के 5 तत्वों से। और तू हर एक के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के घर में तू इंपॉर्टेंस रखेगा और तू अमर हो जाएगा। जैसे राहु केतु को विष्णु जी ने अमर कर दिया था, वैसे ही इसको भी अमर कर दिया गया। यू विल हैव इंपॉर्टेंस। और उसको एक पर्टिकुलर तरीके से सभी देवताओं ने, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, नो ऑल ऑफ देम वर देयर। तो उन्होंने इसको, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी उस इंसान की, तो उसको पकड़ के धरती पे इम्बेड किया। जब वो इम्बेड हुआ तो एक वर्टिकल एक डायगोनल पोजीशन पे उसको इम्बेड किया गया, जिसमें उसका सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और जो पाँव है वो साउथ ईस्ट की तरफ। इस तरह से मैं आपको वास्तु पुरुष की एक पिक्चर भी दिखाऊंगा अभी। उसको सभी देवताओं ने जब इम्बेड किया, वो जो स्नैपशॉट बना उस समय, उस स्नैपशॉट में सभी देवताओं की पोजीशंस आ गई धरती के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देवता, साउथ ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के दबा के उसको फिट कर रहे हो और सभी देवताएं वहां पर खड़े हैं, और उन देवताओं की अगर मैं फोटो खींच लूं, तो मुझे सभी देवताओं की पोजीशन पता लग जाएगी कि कौन सा देवता कहां पर खड़ा होता है। आई वुड कम टू नो दी पोजीशन ऑफ ऑल दी देवतास। यही वास्तु का खेल है। आपको सभी देवताओं की पोजीशंस को बता दिया जाता है कि कौन सा देवता कहां पर बैठा है, कौन सा देवता कहां पर खड़ा था, जब वास्तु पुरुष को सेटल किया जा रहा था। और वही सेटलमेंट हमें अपने घर में करनी होती है। वी हैव टू डू द सेम सेटलमेंट, क्योंकि हमारे घर की, हमारे जमीन की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होती है। इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टर्बुलेंट। यही बैलेंसिंग वास्तुशास्त्र है। और 90% लोगों के घर में ये एनर्जी जो है बैलेंस नहीं होती है। सो आपने अपनी एनर्जी तो बैलेंस कर ली शरीर की,
लेकिन आपने अपने घर की एनर्जी बैलेंस नहीं की है। आपके घर का जल तत्व, आपके घर का वायु तत्व, आकाश तत्व सब खराब है। तो दैट मीन्स वास्तु पुरुष कंफर्टेबल नहीं है। उसको जिस तरह से भोलेनाथ और बाकी देवताओं ने सेट किया था वो सेटल्ड नहीं है आपके घर में। किसकी वजह से? आपकी बेवकूफी की वजह से। लोग जो वास्तु पे विश्वास नहीं करते हैं, या तो उन पे भगवान की अपार कृपा होनी चाहिए कि उनको घर ही वास्तु के अकॉर्डिंगली मिल जाए। ये अपार कृपा कही जाती है, जैसे भोले भाव से मिलता है। आप भोलेनाथ के अनन्य भगत हैं और आपको भोलेनाथ ने वही घर देना है जो वास्तु से बना हुआ है आपके लिए। किसी और के लिए वो नरक का द्वार हो सकता है, आपके लिए वो स्वर्ग का द्वार हो सकता है। या दूसरी चीज है कि अगर आपके इतने अच्छे कर्म नहीं है तो आपको वास्तु स्पेशलिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स की मदद की जरूरत पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब ये जो वास्तु है, वास्तु पुरुष है, इसको एम्बेड किया गया था धरती में, और वहां से जो शास्त्र लिखा गया उन देवताओं की पोजीशंस को एक्सप्लेन करते हुए कि साउथ वेस्ट में ये देवता है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। इसमें से 4 देवता ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। ओके, देयर आर devatas who have been given importance, a lot of importance. इनको चारों को हम क्षेत्रपाल भी कहते हैं। एक घर है, उसकी प्राइमरीली 4 डायरेक्शंस मेनली होती हैं, जैसे मैंने कल भी बताया। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ में माँ लक्ष्मी है और उनके मैनेजर हैं कुबेर, क्योंकि विष्णु जी की प्रेजेंस नॉर्थ में है। जहां पर विष्णु जी होंगे वहां पे माँ लक्ष्मी होंगी, याद रखिएगा। साउथ में कौन है? यमराज है। यमराज। ईस्ट में इंद्र हैं, इज ऑल्सो सूर्य। और वेस्ट में शनि। वरुण देवता। वरुण वरुण। देवता इज ऑल्सो शनि, क्योंकि शनि की सपोर्ट है वरुण देव का। वरुण क्या है? व्हाट इज वरुण? रेन। Air. No, Air. Varun is Jal. जल वरुण जल इज जल। Oh, Jal. Sorry. जल। और जल किसको पैदा करता है? Air. एयर को। एयर को। इसलिए शनि हो ये गया। हायरार्की याद रखना। जल वायु को पैदा करता है, वायु अग्नि को पैदा करती है, अग्नि धरती को पैदा करती है, और धरती आकाश को पैदा करती है। इस हायरार्की, इस सर्कल को याद रखना। ये सर्कल बहुत काम आएगा, क्योंकि क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और बैलेंसिंग यही सिखानी है मैंने वास्तु में। कौन किसको क्रिएट करता है, कौन सा एलिमेंट किसको बैलेंस करता है, और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय करता है। जब आप ये समझ गए तो आप घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु, भवन का वास्तु, मंदिर का वास्तु, नगर का वास्तु, क्षेत्र का वास्तु, देश का वास्तु आप जान सकेंगे। आप भारत का ही वास्तु ले लीजिए। अगर मैं यहां पर वास्तु भारत का क्रिएट करूं, मैं यहां पर भारत का ही एक नक्शा, जो कि मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आएगा,
आप सब तो जानते ही हैं मेरी प्रतिभा को। ओके, आई एम हाईली टैलेंटेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग, लेकिन मैंने मिलता जुलता बना दिया है, राइट, थोड़ा बहुत क्रिएट कर दिया है। नॉर्थ कुबेर इज एक्चुअली व्हाट? जल। I'm telling you, right? North is Jala. Okay? आप ये देखिए, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी स्नो है, जितना भी सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर नदियां होती हैं, समुद्र नदियों से बनता है, समुद्र अपने आप नहीं बनता। समुद्र की जो क्रिएशन है, जो जड़ है, वो नदी है, क्योंकि सभी नदियां नाले जो है वो समुद्र में जाके मिलते हैं। याद रखिए, जल की जो क्रिएशन है वो नॉर्थ में मिलेगी आपको। पूरे साउथ का जो जल है, ऐसे तो साउथ में भी जल है, लेकिन पूरे साउथ का जल आया कहां से है? नॉर्थ से, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने YouTube से पूछा भी था, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि साउथ में जल कैसे है सर, अगर आप नॉर्थ में कह रहे हो, तो नॉर्थ से ही साउथ में जल आया। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तो हर जगह चाहिए ना, लक्ष्मी तो हर जगह चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साउथ वाले हिस्से में बैठ के जल ही नहीं पी सकते। ऐसा नहीं है कि साउथ, आपके साउथ वाले हिस्से में 24 घंटे आग ही लगी रहती है आपके घर में, ऐसा नहीं है। आपके पास जल के बाद ईस्ट की तरफ में वायु है। ओके, आपके ईस्ट में वायु तत्व होता है। वायु के बाद साउथ में आपका अग्नि तत्व होता है। साउथ वेस्ट की तरफ आपका अर्थ एलिमेंट होता है, और यहां पर आपका आकाश एलिमेंट होता है। याद रखिएगा, वही सर्कल जो मैंने आपको बताया। इज इट करेक्ट? 100%? 100%? यस अमिता जी? Sir, so this is mostly like in the northwest we are saying Akash Tattva hota hai. जी And but in the west it is Jal, right? जी Okay. जी। वेस्ट के देवता जो हैं वो जल देवता हैं, ठीक है। वेस्ट के जो देवता हैं, जैसे एक नक्षत्र के देवता होते हैं, डीटीज होते हैं, लेकिन नक्षत्र की थीम अलग होती है। ओके, जल और आकाश का कलर एक ही है ना। अभी बहुत सी डीप चीजें आपको बताएंगे, वो आगे जाके पता लगेगा। ये सर्कल चलता है। अगर लाइफ में इंद्र देवता की प्रेजेंस ज्यादा हो जाए ना, वायु बढ़ जाती है। वायु कैसे बढ़ती है? आपने वो वर्ड सुना है कि यार ये इंसान बड़े हवा में है आजकल। आप हवा में कब आते हो? जब इंद्र बढ़ जाते हैं। व्हाट इज इंद्र? क्या है इंद्र? Vayu. Vayu. इंद्र है लग्जरीज ऑफ लाइफ, रोमांस, इंजॉयमेंट। चार पैसे आ जाए, लग्जरीज बढ़ जाए, तो 99% लोग थोड़े से हवा में आ जाते हैं।
राइट। मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा डिटेल में कि इंद्र एलिमेंट वायु को कैसे बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा क्रिएशन कैसे कर देता है वायु की। तो ये चीजें आपको बैलेंसिंग, और ये चीजें आपको जब डिस्ट्रक्शन हम करेंगे एलिमेंट्स की तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये चार जो क्षेत्रपाल है, कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण, इनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। दीज आर दी 4 मेजर इंद्रपालास, सॉरी दी क्षेत्रपालास, very very important kshetrapalas. So basically vastu is balancing the 5 elements, the akash tattva, the dharti tattva, agni tattva, vayu tattva, jal tattva. इनकी बैलेंसिंग आपके घर के अंदर इज दी वास्तु। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो कंफ्यूजन, कैन वी गो हेड? ओके। Yes. एक टेबल मैं आपको और समझाऊंगा यहां पर, और वो टेबल को आप अपने घर का प्लॉट या घर समझिएगा। मान लीजिए ये एक वो प्लॉट है जिसपे घर बनाया जा रहा है। मैंने उस दिन अमिता जी के साथ जो वीडियो शूट किया उसमें क्लियरली बताया कि एक स्क्वायर घर कभी भी नहीं आपको बनाना चाहिए। You should never ever make a square home. एक घर के अंदर इस तरह से हम हिस्से बनाते हैं, बहुत बेसिक हिस्से। और मान लीजिए कि ये ईस्ट फेसिंग घर है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट and this is going to be west. This is going to be north and this is going to be south. This is going to be northeast and this is going to be northwest. This is going to be southwest and this is going to be southeast. And this is going to be the Brahmastan, the center point. Brahmastan. केंद्र, एपिसेंटर, सेंटर। जो पहले घर बनते थे उसमें कहीं ना कहीं पर या तो साउथ में या नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार होता था घर का, द मेन एंट्रेंस। और घर से एंटर करते ही बिल्कुल सेंटर में माँ तुलसी होती थी और आसपास कमरे होते थे। ये सबसे बढ़िया मॉडल था घर का, सबसे प्रॉस्परस मॉडल। साउथ ईस्ट में यहां पर किचन हो जाती थी हमेशा इजीली। यहां पर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मेन बेडरूम दे दिया जाता था। एक चीज याद रखिएगा, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूं, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। घर का
कभी भी मध्य द्वार नहीं होना चाहिए। मध्य द्वार इज अ बिग नो नो। अगर घर का मध्य द्वार हुआ, means the main entrance, the main gate is in the middle of any of the side, this side, this side, this side, right, or this side. अगर मध्य द्वार होता है किसी रेजिडेंशियल घर का, वो द्वार बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज यू हैव 4 मेजर लोकपालास और क्षेत्रपालास एट दैट एरिया। याद रखिएगा, या तो आप घर में हमेशा कुबेर की परमिशन से या माँ लक्ष्मी की परमिशन से आ रहे हैं, या इंद्र की परमिशन से, या यमराज की परमिशन से, या आप वरुण देवता की परमिशन से। ऑलवेज यू आर टेकिंग देम इन लूप, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ये मध्य द्वार केवल मंदिरों का हो सकता है, only temples or religious places where you need blessings all the time. Suppose you are bringing a wine bottle at home and your home is north Madhya Dwara. Every time you're taking wine bottle, eggs or meat or any rajasic food in presence of Ma Lakshmi. Imagine. सोचिए आप इस चीज को। Only temples should have the Madhya Dwara. Only the temples should have the Madhya Dwara. And houses that has a door and that door has 2 doors. One opens towards the right or the left. This is also wrong to have it for residential. The residential main entrance or the main gate should not be a 2-door kind of a thing. आजकल बड़ा दरवाजा क्रिएट करते हैं ना, 2 द्वार वाला। आप देखो उस घर में कभी सुख नहीं होता, कभी सुख नहीं होता उस घर में। आपको घर में सिंगल डोर एंट्रेंस होनी चाहिए एंड वो भी क्लॉकवाइज खुलता हो, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। अमिता जी कह रहे हैं कैन रिलेट। यस, यू कैन टेल मी हाउ आपने लिखा वी कैन रिलेट दैट। So one of the projects, a very big house, I've just finished doing. I actually was involved not in the designing aspect of it, but in the project management and construction part of it. Very, very big family here in Dubai. Very lovely people, but they went into the house. I mean, now I can relate because you're telling me they occupied the house in December. जी। And they are just not happy. एक तो उनका घर का काम भी खत्म होके नहीं दे रहा last bit, and something or the other is always there which is making them unhappy. A lovely family. I mean, I keep wondering why they should have any trouble, you know. And they have double doors. No. They have double doors. So yeah, at the entrance, right at the entrance. Just change it to a single door and you'll see the change immediately. Okay. You see the change immediately. जो 2 दरवाजे हैं वो किले के होते थे। 2 दरवाजे जो थे वो भवनों के होते हैं। मंदिर के हमेशा, मंदिर का कभी सिंगल डोर नहीं होगा। किसी भी मंदिर में एंटर कीजिए 2 द्वार होंगे उसके। So, लेकिन ये भी कहते हैं ना, जो फैमिली मंदिर में रहती है वो भी खुश नहीं होती। नहीं होते, क्योंकि आप रजस और तमस और काम को मंदिर में लेके जा रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह मंदिर में जा रहे, नहीं जाना चाहिए।
अगर एक पंडित जी भी मंदिर में रह रहे हैं तो उनको भी तो फिजिकल रिलेशन होंगे ना. जी. तो मंदिर इज नॉट अ प्लेस. इसीलिए कहते हैं कि एक नव विवाहित जोड़े का जो बेडरूम है वो कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में नहीं होना चाहिए. ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है. कुछ वास्तु दोष बेसिक्स हैं और कुछ जो हैं वो कुंडली सेंट्रिक हैं. जी. मध्य द्वार इज बेसिकली फॉर मंदिर, फॉर स्पिरिचुअल प्लेसेस. आप बड़ा स्लाइडिंग दरवाजा बनाइए, आप अच्छा सिंगल डोर स्ट्रॉन्ग बनाइए. समहाउ अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की कमी होती है क्योंकि आप स्पिरिचुअल एनर्जीज को बुला रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रजस. सत्व और रजस की कंफ्यूजन में बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है. और एक अच्छे घर में चारों तरफ जगह छोड़ी जानी चाहिए. ताकि चारों तरफ की एनर्जीज के लिए कोई रुकावट ना हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो. अगर जीवन में कभी मौका मिले घर बनाने का तो इस प्रकार से आप घर बनाइएगा. लेकिन हमारी पूरी की पूरी एसओपी फ्लैट्स के अंदर और जो घर चारों तरफ से नहीं खुले हैं तो एटलीस्ट सामने से और पीछे से जगह जरूर खुली होनी चाहिए. अगर आप चारों तरफ से नहीं खोल सकते हैं क्योंकि साथ साथ घर बनते हैं आजकल, जगह लिमिटेड है. सो इट शुड बी ओपन फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक. Very, very important. That's another Vastu tip. Now, where are the planets? Where are the planets? So, planets in the southeast is Venus, Shukracharya. Planet in the southwest is Rahu Ketu. Planet in the west is Shani, Saturn. Planet in the northwest is Moon. Planet in the north is Mercury, Buddha Devata. Planet in the northeast is Jupiter. Okay. So, I have to do this. Northeast is Jupiter. And in the east, it is Sun. And in the south, let me just clear this. Mangal. Mars. अगर
किसी की कुंडली में मंगल खराब है, आप उसका घर जाके देख लीजिए, जौन सा मर्जिंग फेसिंग घर होगा उसका साउथ खराब होगा हमेशा, ऑटोमेटिकली। अगर किसी की कुंडली में ईस्ट खराब है, आप उसका चार्ट खोल के देखिए, उसका सूर्य खराब बैठा होगा, आइदर डिप्लीटेटेड होगा या किसी ग्रह के साथ फंसा हुआ होगा, राहु केतु शनि के साथ। अगर किसी के घर के नॉर्थ में दोष है, चंद्र बुध या बृहस्पति खराब होंगे। साउथ में अगर दोष है किसी के घर में, जैसे ही आप जाते हो साउथ में सारा नीला नीला पड़ा हुआ है, सारा का सारा ब्लू कर रखा है साउथ, उन्होंने ब्लैक कर रखा है, आप उनकी कुंडली खोलिए, उनका शुक्र मंगल राहु केतु खराब होंगे। एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? आप किसी के घर नहीं गए, आपने केवल कुंडली देखी, कुंडली देखकर आप कह सकते हैं कि आपके घर में ये वाली चीजें खराब है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस इज वाइस वर्सा ऑल्सो एंड दिस इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो। चेक करिएगा कभी, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी। आज आपको 4 क्षेत्रपाल, 9 के 9 ग्रहों की डायरेक्शन, वास्तुशास्त्र की क्रिएशन, पंच तत्व और पंच तत्वों की क्रिएशन बता दी गई है। यू हैव बीन टोल्ड कि आकाश सबसे पहले जल है, जल से जब गर्मी पैदा होती है तो वायु, एयर क्रिएट होती है, और जब एयर क्रिएट होती है तो बिना ऑक्सीजन, बिना एयर के अग्नि नहीं जल सकती। जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं जंगल में तो उसकी रगड़ से आग पैदा होती है, एयर की रगड़ से अग्नि पैदा होती है। जंगल में आग वायु की वजह से लगती है। जब आग लग जाती है तो काफी चीजें, अर्थ वुड एलिमेंट जो है वो जल जाता है, तो वहां से जो अग्नि का शेष है, मिनरल्स, वो धरती को पैदा करते हैं, और धरती की वजह से ही आकाश का अस्तित्व है। तो ये सर्कल है, उसके बारे में आपको बताया गया। आपके शरीर की गणना भी ऐसे ही होती है। माँ के पेट में सबसे पहले आप जल में होते हैं, जल के बाद कुछ दिनों में आपके शरीर में धड़कन आती है, कुछ दिनों तक बच्चे के शरीर में धड़कन नहीं होती, कुछ दिनों के बाद धड़कन आती है, वायु तत्व हल्का सा क्रिएट होने लगता है, और फिर बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का अपना मेंटेन होने लगता है जब ब्लड और मसल बनना शुरू होता है। मंगल 9 महीने तक केवल ये 3 चीजें रहती हैं, और जिस दिन जन्म होता है एक बच्चे का, उस दिन उस बच्चे को धरती और आकाश तत्व मिलता है। 9 महीने तक, 36 वीक्स तक केवल 3 तत्व होते हैं। पंच तत्व धरती, धरती मतलब बुद्ध, समझ रहे हैं आप मेरी बात, मन, और गुरु माता पिता, वो जन्म के बाद मिलते हैं, वो जन्म के बाद मिलते हैं। और पुराणत शास्त्रों में माँ को, पिता को, गुरु, एलिवेटेड सोल्स को कहा गया, जो कोख में ही माता पिता और गुरु को ग्रहण कर लेते थे। वो मिलियंस में से एक सोल थे, जिसमें से एक सोल थी अभिमन्यु। वो सभी ब्लेस्ड सोल्स नहीं हो सकती, और नॉट ऑल दी ब्लेस्ड सोल्स। तो यहां पर
मैं आज अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आपको काफी बेसिक इंट्रोडक्शन आज वास्तु की पता लगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अब आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में कि धरती का चयन कैसे किया जाता है, कि एक रहने लायक सही धरती कैसी होती है, कौन सी होती है, उसमें कौन से प्रोसेसेस आपको लेकर आने हैं, कैसे देखना है, कैसे गाइड करना है। तो वो चीजें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, फिर बैलेंसिंग, फिर सभी देवता 45 देवतास हैं हमारे, उनके बारे में, जो मेजर 32-33 देवता हैं उनके बारे में, क्षेत्रपाल, लोकपाल, इन सब के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा, और फिर बैलेंसिंग, और फिर रेमेडीज, और ज्योतिष के से इनपुट्स कैसे लेनी है वो आपको बताई जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ज्योतिष के वास्तु के कोर्स के बाद आप एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी बनकर, बहुत ही अच्छे वास्तुशास्त्री बनकर पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। दैट इज आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। हमारा एम अपना कल्याण, अपनी परिवार का कल्याण तो है ही है, लेकिन हमारा एम विश्व का कल्याण भी है। ओके क्योंकि जब हम मदर नेचर को देते हैं तो मदर नेचर हमें एक्सपोनेंशियली वापस करते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? यस, नो, मेबी यस, योगी जी। सर जस्ट ये जो क्वेश्चन था अमिता जी ने पूछा था 2 डोर्स वाला, हैविंग 2 डोर्स, अगर घर का तो डोर सिंगल वाला है लेकिन आउटसाइड लाइक बाउंड्री का जो लोहे के गेट हाँ होते वो हैं चलेगा, वो चलेगा। वो 2 डोर्स। ओके, जब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में एंटर करते हैं बाउंड्री को छोड़ के, वो जो द्वार है वो जो है वो 2 द्वार के नहीं होने चाहिए। ओके, वैसे तो कोशिश कीजिए, आज की डेट में जो ट्रेंड है वो ये है कि जो मेन जो गेट है ना वो भी स्लाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिमोट्स वाले हैं। बड़ा अच्छा ट्रेंड है वो, उसने वास्तु दोष खत्म कर दिया, उसने वास्तु दोष खत्म कर दिया। अगर घर का भी जो मेजर बाउंड्री वाला भी 2 द्वार वाला है ना, तो टेक्निकली थोड़ी सी दिक्कत तो उसमें रहती है, कोई ऐसी मेजर बात नहीं है, लेकिन मतलब वो चलेगा इतनी तो, दैट्स फाइन। लेकिन जब एंटर करते हैं, आपकी कंस्ट्रक्टेड भवन के अंदर एंटर किया जाता है, एक तो वो मध्य द्वार नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो द्विद्वार नहीं होना चाहिए। जी जी सिद्धार्थ जी। So one question, जैसे आपने कहा कि we have to look at the individual's chart also when we are checking, when we are going for a vastu consultation. So किसका chart देखना है, मतलब is it say let's take an example, it's a joint family and 2 members are earning, in this father and the son both are earning, तो फिर इस केस में how do we look at whose chart should be looked at? देखिए, सबसे पहले आपको परिवार के मेन मेंबर का, हेड ऑफ द फैमिली का, उसका आपको चार्ट देखना है, जिसकी वजह से वो घर बना है, राइट। समझा। तो जिसकी वजह से वो घर बना है उसका आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद पति और पत्नी, जैसे सबसे पहले दादा, परदादा या पिता की वजह से घर बना है तो उसका चार्ट देखेंगे। उसके बाद जो उस घर का फ्यूचर है, घर का फ्यूचर है पति पत्नी जो रह रहे हैं, उनका चार्ट देखा जाएगा, और उसके बाद बच्चों का। तो ये हायरार्की है। ओके। अब प्राइमरीली इनकम सोर्स प्रॉब्लम कहाँ आती है? इनकम सोर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है अपॉर्चुनिटीज को लेकर, पैसों को लेकर। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? जो अर्निंग मेंबर्स हैं। और अगर पति और पत्नी में से भी अगर मेरे को प्रायोरिटी दी जाए चार्ट देखने की, तो मैं पत्नी का चार्ट, फीमेल का चार्ट
प्रायोरिटी पे रखूंगा। ओके। ये जो वास्तु है, चाहे आपकी पत्नी होम मेकर है, but she is the one who is going to spend more time at home, right? Yes sir, that's right. Right? So उसकी पत्नी को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखूंगा। सपोज करो कि हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड है, वाइफ होम मेकर है, so I will keep out of husband and wife, my first priority would be wife and then the Okay. husband, because she and children are going to spend more time at home, right? But then definitely I will consider the chart of the male member as well and the head of the family as well. समझा। Okay. Priority is this: head of the family, then the patni, and then the pati, and then the Mhm. children. समझा। Okay. Okay. Got it. Thank you. Yeah, Anuja? So one question Siddharth ji already covered that I had, so thank you for that. The second question I have is जो actual directions होते हैं of the plot, are they based on the compass, the actual directions, या फिर there is a different consideration? I didn't get your question. अब जैसे कोई I've heard a few people say कि plot का north ये है, हाँ you know, because plot टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं ना, मतलब. हाँ, So that's actually as per the compass जो directions होते हैं, मतलब. एज पर द कंपास, प्लॉट पे उस जगह पे खड़े होके जो कंपास हम लगाते हैं उससे वहां से डायरेक्शन निकाली जाती है, नॉट जनरल डायरेक्शंस। Okay. And the second question I have is when you mentioned about the prarabdha karmas जो किसी के हम मतलब अगर fixed है तो wipe off नहीं कर सकते, in those instances pujas such as उदक शांति और वास्तु शांति के जो general मतलब पूजा होते हैं, they help or they don't? No, they don't. Okay, कलयुग thank you. केवल नाम धारा सिमर सिमर नर उतरे पार, जो आप नाम जपते हैं उसी का फायदा है। ठीक है? यस डॉक्टर पूजा। पूजा से याद आया, डॉक्टर पूजा को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा। I have the same question which Yogi ji asked. In my house there are two main gate doors. So एक ही single door है और जो पीछे वाला है it has double doors. इसको सिंगल करवा दो। Though we keep the half one always closed and only half we are operating and we normally don't go वहाँ से। That is a remedy, but try to make it single door. अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है सर, वापस सिंगल डोर। ओके, नो Try प्रॉब्लम। to make it single, थोड़ा बढ़िया हो जाएगा उससे। और सर अभी जैसे जो ग्राउंड फ्लोर है, अभी हमारा G+2 है, सो उसका डायरेक्शन इज डिफरेंट। जैसे मतलब वी हैव अ like we have a G+2, we have a ground floor, then first floor, then second floor, and then there is a terrace. जी जी। तो हर एक फ्लोर का वास्तु अलग अलग होएगा या सिर्फ प्लॉट का वास्तु होएगा? नहीं, आपको कंसीडर तो सभी कुछ करना होता है, फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड, एवरीथिंग, क्योंकि एनर्जी तो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर ही रही है ना। ओके, तो मतलब हर एक फ्लोर का अलग अलग लाइक वास्तु होएगा, यू आर सेइंग दैट वे ना? हम, आपका क्वेश्चन ही गलत है, यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। हर एक फ्लोर में जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम ही है ना। हाँ जी, राइट। हाँ तो जी। हमें वास्तु तो पूरे घर का ही देखना है, उसमें फर्स्ट फ्लोर भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है। ओके, अलग अलग वास्तु नहीं है, वो पूरे घर का वास्तु है, उसमें फर्स्ट फ्लोर भी कवर हो रहा है, सेकंड भी और थर्ड भी। ओके, उसमें ओके सर। प्रिंसिपल्स। हाँ जी योगी जी। सर वो ये कहना चाहती हैं कि फर्स्ट फ्लोर वाले अलग हैं, सेकंड फ्लोर वाले कोई और रहता है, शी इज स्टेइंग एट लाइक थर्ड फ्लोर सपोज, तो उनको कंसिडर दूसरों का फ्लोर का करना पड़ेगा कुछ कि नहीं? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सारे फ्लोर्स इनके पास हैं, ये बड़े लोग अच्छा, हैं, बड़े नहीं लोग नहीं हैं। फैमिली फैमिली स्टेइंग एक्चुअली। तो और सर आई हैव हर्ड तो फैमिली सही तबेला थोड़ा फैमिली रहेगी। एक देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, व्हाट दे हैव डन,
दे हैव आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऐसे फ्लोर वाइज, एंड उन्होंने पता नहीं वास्तु करके कि बड़े वाले को ये डायरेक्शन होनी चाहिए, छोटी डॉटर को ये होना चाहिए, पेरेंट्स को इधर, सो दैट आल्सो सिर्फ वर्क्स उन्होंने क्या? क्या ना फिर अपने फ्लोर्स को डिवाइड किया होगा। हाँ जी, फ्लोर को डिवाइड किया जैसे हाँ, तो हमने फिर किया फ्लोर हुआ। डिवाइड किया तो फिर अलग अलग वास्तु होगा सबका, ओके, राइट। लेकिन जो बेसिक एनर्जी है ना वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, हाँ जी सर, जो डायरेक्शन सेम है। ओके। ऐसा होता है कि सर जैसे मान लो इधर से जॉइंट फैमिली एंड दादा दादी हो गए एंड देन दे हैव टू सन्स, तो उनकी वाइफ हो गई जैसे, जी जी जैसे जी उनके में ऐसे ही जी है, जी जी तो जी उनका जी। कैसा है कि जो बड़ी बहू है वो ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहेगी, जो छोटी है वो उससे ऊपर रहेगी, समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने वास्तु वालों ने बताया कि इसके लिए बड़े लोगों के मतलब जो बड़े कपल हैं उसके लिए ये फ्लोर शुभ है और छोटे के लिए ऐसा है, या वो सिर्फ ये नहीं ऐसे नहीं, ही है, वो हवा में पांडु, है? पांडु बनाया उसको। हाँ वही वही मुझे लगा आपकी बातें सुन के आज की। वो तो जितना मर्जी आप इम्पोर्टेंस दे लो ना, मतलब अब अगर एक छोटी बहू फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहती है और मेरे को आके कहती है गुरुजी ये 51,000 है, आप वास्तु में मुझे बता देना कि फर्स्ट फ्लोर आपको ही देना है, तो 51,000 का किसी के लिए वजन काफी हो सकता है। ओके ठीक है, वो कह सकता है कि हाँ बेटा इसी को फर्स्ट फ्लोर देना आप, ठीक है ना, इसके लिए उत्तम है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है एंड ना। लास्ट थिंग सर, हाँ I जी। would like to thank Yogi ji and you because Yogi ji, initiated me to join the class. Thank वेरी you, नाइस, Yogi ji, वेरी नाइस। and it was very good. मतलब thank God I joined it. हम काफी जन्मों से ये काम ही कर रहे हैं, मैं और योगी जी। Thank you, Yogi ji. श्रेय आपको भी जाता है, जी जी, मेरा श्रेय। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, sir. जी जी जी। यस पायल। Sir, I just need a little clarity on Siddharth's question. So, like, if he mentioned that father and son ka chart we have to check. So, if father is not the major earning source of the family and the son has overtaken or something, then also we should give priority to the father's chart. नहीं नहीं, हेड ऑफ द फैमिली फिर चेंज हो गया ना। हेड ऑफ द फैमिली की जो है, हेड ऑफ द फैमिली वो होता है जिसकी चलती हो घर में। चलती किसकी है? जो चार पैसे Yes. कमा के लाता है, सीधी सी बात है। Okay. जिदे So, घर, there's just that clarity. हाँ जी, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सुहाने। सो मतलब जिसके पास चार पैसे हैं वो हेड बन जाता है फॉर नो रीजन। So, उसके बाद तो बीवी हेड होती है ultimately. So, नहीं नहीं, आपके I got you. आप लोगों के चरणों में तो हमेशा नमन है मेरा, सभी बीवियों के चरणों में। Thank you. ठीक है ना, हेड तो बीवी होती है, बिल्कुल होती, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो चार्ट है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी है वो घर की, उसकी वजह से तो घर का कोई। बीवी तो गर्दन होती है, हेड फैमिली का तो मैं नहीं होता है, बीवी गर्दन होती है। ये तो नई बात सुनने को मिली है, तो हम लिखेंगे। यस सर, जिधर गर्दन घुमाने को बोलो देयर द मेन टर्न्स ना हेड। अच्छा, हेड होता है, इसका मतलब पति के पास जुबान नहीं होती, जो गर्दन में ही सारी जुबान होती है। यस अपनी गर्दन दबा देती है तो सब करना पड़ता है। योगी जी को बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वैसे भी आपका असेंडेंट माघा में है, अभी धीरे धीरे राज खोल रहे हो भाई साहब आप। चलो एनीवेज, यस मनमीत जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आपके चश्मे बड़े सर, शानदार हैं। अच्छा थैंक यू सर। जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी, ब्रह्म स्थान पे राउंड ऑब्जेक्ट लाइक टेबल और समथिंग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? किस लिए रखना है? वैसे तो ब्रह्मस्थान खाली रखना चाहिए और साफ रखना ओके चाहिए वास्तु के हिसाब से। इट शुड बी ओपन, क्लियर एंड क्लीन, राइट। ओके So keeping a round table has what logic I don't understand, but try to keep it clean and try to keep it open. ओके बिकॉज सर मेरा डाइनिंग एरिया है वहां पे राउंड। और वहां बैठ के मुर्गियां भी खाते हो आप लोग? हाँ जी। वहां बैठ के मुर्गियां भी खाते हो आप लोग? नहीं रेयरली वैसे। हाँ, रेयरली मतलब क्या हुआ? रेयरली मतलब कभी कभार हो जाता है, हाँ जी। ठीक है ना। नहीं नहीं, ब्रह्म स्थान में जहाँ से एनर्जी सबकी तरफ निकलती हो वहां पर डाइनिंग एरिया नहीं होना चाहिए। ओके आइडली सेहत खराब रहती है, स्टमक प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको।
थैंक यू सर। ठीक है, तो अवॉइड करिए प्लीज उसको आप, ठीक है। और ट्राई टू कीप क्लीन, साफ रखिए ब्रह्म स्थान को, क्योंकि ब्रह्म स्थान के बारे में पूरा लेक्चर है मेरे पास, पूरा लेक्चर देंगे आपको, ठीक है जी। पवन जी, सर अगर इफ वी डोंट हैव अ चार्ट ऑफ द नेटिव हु इज गोइंग टू चेक, मतलब जो चेक करवाना चाहते हैं, तो सर उस कंडीशन में हम कैसे समझते हैं कि जो जनरल जो वास्तु है हम वो अप्लाई करते हैं वहां पे, अदरवाइज जो मतलब क्या करते हैं सर फिर? देखो एक विष्णु जी की कुंडली तो सबने सबके जीवन में होती है। जी एक कुंडली आप बनाते हैं, एक कुंडली आपको विष्णु जी ने देकर भेजी है। जी। वो कौन सी है? काल पुरुष की। अरे नहीं पवन जी, आपकी हस्तरेखाएं। अच्छा जी। आपकी जो विष्णु जी की कुंडली आपके शरीर पर एम्बेडेड है, वो आपकी हस्तरेखाएं हैं। और आपके हस्तरेखाओं को देखकर, पाम्स को देखकर हम बता देते हैं कि मंगल स्ट्रांग है, बृहस्पति स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है। तो अगर जिन लोगों के पास कोई चार्ट्स नहीं है, उनके पास विष्णु जी की दी हुई एक कुंडली है, वो है हस्तरेखा। इसीलिए हस्तरेखा एक शास्त्र बना। तो उनके जी हस्तरेखा, अभी वर्कशॉप लगाएंगे हस्तरेखा के ऊपर 3 दिन की, जी राइट। तो उसमें आपको हस्तरेखा समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या, आपको हाथ देखना भी आ जाएगा। लेकिन हाथ देखने के लिए आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आप अपनी बनाई हुई कुंडली में नहीं कमेंट कर रहे हो, आप विष्णु जी की बनाई हुई कुंडली के ऊपर कमेंट कर रहे हो। इसलिए मेरे गुरु जी जी ने बोला था कि जब तक कोई हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअलिटी पे ना पहुंच जाए, उसको हाथ देखना मत सिखाना, ठीक है ना। क्योंकि हाथ देखना बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप गलत बकवास करते हो देखकर, जी। ठीक है ना, बिकॉज वो विष्णु जी की दी हुई चीजों को आप कमेंट कर रहे हो। इट्स Correct. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो जबकि हम सर वाइस हाथ, वर्सा होता है, वाइस अभी वर्सा होता है, एग्जैक्टली। लोग पहले हाथ देखना ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फिर चार्ट पे आते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, दैट इज व्हाई जी दे आर नॉट प्रॉस्परस, ओके, दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्रॉस्परस, थैंक यू सर। ओके। वेलकम जी। योगेंद्र जी, और आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आशीर्वाद दे रहे सर नहीं सर, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता था कि आई वाज रिसेंटली लर्निंग कॉस्मोलॉजी, हैं जी। वैदिक कॉस्मोलॉजी। तो उसमें सर ये जो आपने जो 4 बताए हैं क्षेत्रपाल, ये सुमेरु पर्वत पर जो 4 बने हैं ब्रह्म नगरी में, जी जी जी। वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है। उसकी मेरे पास एक वो है पूरी श्लोक है, आई विल शेयर वाह, आफ्टर। या वो क्लास एग्जैक्टली के सेम है बाद आप शेयर करिएगा, मजा आएगा उसको पढ़ने में। उसमें। उसको देख के मुझे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मुझे फिर एकदम से स्ट्राइक किया कि सर ने जब वास्तु पढ़ाई थी उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। जी तो इसका मतलब cosmology has something related to with how the vastu is, because Vedic cosmology is for the whole bhumandala and earth is just part of it. So एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। जी जी। सर ये मैं पूजा जी का जो क्वेश्चन था ना, 2 डॉटर इन लॉज वाला, क्या ये भी हम कह सकते हैं कि मे बी सर आपने वो बताया था मार्स एंड केतु का, कि अगर तुम्हारा केतु स्ट्रॉन्ग है तो बेटर स्टे लिटिल अवे फ्रॉम द फ्लोर, एंड अगर तुम्हारा मार्स स्ट्रॉन्ग है तो स्टे नियर द फ्लोर, ये भी हो सकता है? 100% हो सकता है, ये 100% हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला फर्स्ट पे रहेगा, उसके बाद छोटा वाला सेकंड पे, फिर थर्ड। अच्छा, वो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, वो कोई हाँ नहीं सर, लॉजिक वो नहीं तो मुझे भी लग रहा था कि वो तो है। जी 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 कुछ और ही है, जी बट जी। मैं मन में सोच रही थी कि बाई चांस कि उन्होंने देखा हो और उनको ये लग चुका हो कि हाँ नहीं, जो बड़ा वाला है उसका मार्स अच्छा है तो उसको नीचे, बट नहीं मैं वो ऐसा उस नहीं, उस तो ये एंगल से लॉजिक सोच से रही तो थी। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी ठीक है सर, जी। नंदिता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? थैंक यू। No, I'm just trying to figure out. So there's certain things, right? First, we need to check the chart. Then we have to see in the chart the strongest, actually the movement of the planets, right? So those are some of the principles that you pointed out. I was just trying to think that those steps in my mind, just generally, to get started, right? So then where else will you think? Well, then there you pointed out that the house shouldn't be a square,
You Yes. shouldn't have double doors. The door Yes. shouldn't be in the middle. Yes. And then I was just kind of making a mental checklist in my head. So I was deep in thought about that. But I have a lot of questions, but I don't know anything about Vastu. So I'm sure you'll be teaching it. I don't want to ask all the questions just up front. Yeah, good for me. Good. Yeah. So, all right. So I think you guys have enjoyed the first lecture. Yes, no? Maybe you got some fair idea about Vastu. Yeah. Okay. Amita ji, want to say something? Yes, sir. I think this is why I started studying with you. Yeah. But I was just sharing with the family that I might enjoy studying Vastu, but actually, I think I want to know more about astrology now. So the Yes. interest has changed a little bit here completely. But of course, I enjoyed the lesson today because it's something related to what I do. So Yes. it's obviously Yes. quite exciting in that sense. Yeah. Yes, yes, yes. A lot of people will enjoy, and a lot of people will help a lot of people after these classes. And you know, my wife Nitika, she's very much interested in Vastu. You know, my brother Nishant is also there in the class, Yes. right? So he's also interested in the Vastu, right? When I was getting ready, sorry, I'm cutting you. When I was getting ready this morning, I didn't think of Vastu. I was just thinking that. So when I started my own company, my kids used to say, "Mom, you're 40 and you're starting now." So I said, "I'm only 40. What's the big deal in starting now?" You know? Absolutely, there's no big deal. Yeah. So then they used to say, "Well, then when will you retire?" I said, 75, 80. You know, then I'll become a Oi. draftsman. Absolutely. So I used to tell them that I'll become a draftsman in my company. But today I was thinking, no, I want to be an astrologer. Yes, yes, So that's I so have an good. aspiration now, you know, for my old age as well. Yes, yes, it is, it is, it is. Yeah, That's fantastic. thank you. Okay, so प्रार्थना करते हैं, 3 बार ओम बोलेंगे, 12 बार ओम गुरुवे नमः, और फिर इसको अंत करेंगे। बाकी पूड़ियाँ छोले खाओ, साढ़े से चने भटूरे बने हैं, we're gonna have that, right? So, all right, so 3 बार ओम बोलते हैं और 12 बार ओम गुरुवे नमः बोलते हैं। बाकी जिनकी किस्मत में पोहा है वो पोहा पूहा खाओ, right? Okay, all right. Om Guruve Namah. 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 Om Ayushman Bhava, Tejasvi Bhava, Vijay Bhava. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Thank you, sir. Thank you.